پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. جان چھوڑ دو اپنی فوج کی, اس کو پروفیشنل فوج بننے دو. وداؤٹ ایویڈنس فالس فلیگ آپریشنز ایک کے بعد ایک. دیر از اے لانگ ہسٹری. مارک حق میں ہم نے ایک قسط دکھائے, ہم تب بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا مارکا حق میں جو بھارت نے دیکھا وہ ہمارا 10 سے 15% تھا. ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے عزم پر کسی کو شک ہے تو ابھی ہم نے ایک قسط دکھائی ہے. اس بار 14 اگست پر عظیم الشان پریڈ ہوگی. اپنی پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائیں گے. بھارت کا گمنڈ کرنا اور دوسرے کو کم سمجھنا چھوڑ دے. بھارت کا دہشت گردی ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. 5 گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی. پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا. پاکستان نے جو سوالات اٹھائے وہ اب بھی یوں کہ توں موجود ہے. جواب دیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کروایا. بھارت بتائے کہ کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا. بھارت نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے. بھارتی سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں. اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر آؤ سامنے. بھارت کے لیے واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو. روایتی یا غیر روایتی ہم کھڑے ہیں. بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. یہ جنگ زمین, فضا, سمندر, سائبر اور ذہنوں میں ہے. 6 دریاؤں پر پاکستان کا حق ہے. کسی کو بھی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. PF Cyber Force also targeted Indian data centers, affecting their digital space. Key data جو تھا اس کی ڈیلیشن, جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کٹیل کر دیا. ایک Su-30, ایک MiG-29, ایک Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. مارک حق میں ہمارا سکور 8-0 ہے. 4 بھارتی رافیل گرائے, ایک سہنوئی 30 اور ایک MiG-29, ایک Mirage 2000 اور ایک انتہائی قیمتی بغیر پائلٹ جہاز اور S-400 بیٹریز تباہ کی. ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کی طارق محمود خاضی کی پریس بریفنگ. کہا ہم نے صرف ان طیاروں کو نشانہ بنایا جن نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے. بھاگتے ہوئے طیاروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ہم نے سائبر اور سیٹلائٹ سے بھارت کا کمیونیکیشن سسٹم نکارہ بنایا تو طیارے آسان ہدف بن گئے. بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہوا کیا ہے. سائبر اٹیکس بھارت کے رابطوں کو متاثر کر رہے تھے. پاک فوج نے بھارت کو کسی حد تک لاچار کر دیا تھا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہی تھی. ہم دشمن کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مانیٹر کر رہے تھے. دشمن ہماری سرحدوں تک آنے کی کوشش نہیں کر سکتا. اب نئی کہانیوں اور بیانیوں سے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی. ایئر فورس نے بڑی فضائی طاقت کا مؤثر مقابلہ کیا. کم وسائل کے باوجود بھرپور حکمت عملی اپنائی گئی. عسکری قیادت نے تمام آپریشنل اہداف واضح طور پر طے کیے. جنگی حکمت عملی پہ جدید تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا. پاکستان کی سمندری حدود محفوظ ہے. بھارت کی سمندری حدود وسیع ہے. پاکستان بھارت کی سمندری حدود کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان کی پریس بریفنگ. ہمارے بحری اثاثے سمندر میں موجود ہیں. دشمن زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے قول و فعل میں ذمہ داری دکھائے. مارکا حق میں بھارت نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. بھارتی بحریہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے پانیوں کا رخ کرے. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ہم امن چاہتے ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. مسلح فوج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں, بندرگاہیں فعال رہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو دن بہ دن پالش کر رہے ہیں. پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت گہری ہیں. حرمین شریفین کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی سے جڑی ہے. سعودی عرب کو کوئی خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جڑیں نہایت گہری ہیں. اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ گہرے تاریخی تعلقات کا مظہر ہے. محافظین حرمین شریفین کا اعزاز پاکستان کے ہر بچے, ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں لائی جا سکتی. پاکستان کی ثالثی میں موصول ہونے والے پیغامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا. امریکہ کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی
सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। आयतुल्लाह खामनाई मुजतबाई से मुलाकात इतमाद, आर्जी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज से गुफ्तगू, नुक्ता नजर नहायत आजिजाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। आला तरीन अथॉरिटी की आर्जी और अखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतजामी निजाम के नुमाइंदार है। सदर मसूद पेशकियान का कहना था, इंतजामी ओहदा कोई मराद या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि ये अवाम की खिदमत, एहतसाब और अज़म का एक भारी बोझ है। इनका कहना था, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। दुश्मन चाहता है ईरानी अवाम सड़कों पर आए, हुकूमती निजाम कमजोर हो जाए। अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अमेरिका इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की बात करता है। ईरान के साथ अमन माहदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान अपना हुर्मज़ खोलने के लिए जल्द माहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। ईरान माहदे पर रजामंद हो जाना तो आपना हुर्मज़ ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए खोल दी जाएगी। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दौरा चीन से कबल मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को बीजिंग का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ने अप्रैल में चीन का दौरा करना था, जो जंग के बायस मुअत्तल हुआ। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ये मंसूबा एक जामे अमन मुआहदे की बजाय कलील मुद्दती मफाहमती याददाश्त पर मबनी है। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आपना हुर्मज़ के बहरान को हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक 30 रोजा मुज़ाकराती मुद्दत शुरू की जाएगी। इसमें एक वसीतर और जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़म का रहा। शहबाज शरीफ का 16 अप्रैल को दोहा के अपने हालिया दौरे का जिक्र। कहा, पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा चीन की तफसीलात से आगाह किया। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। इलाकाई ममालिक के दरमियान तामीरी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि खित्ते में कशीदगी के फैलाव को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल की इस घड़ी में सिफारती और इंसानी इमदाद पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भी किया। अमेरिका ईरान जंग रोकने और जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अहम सिफारती किरदार अदा किया। कराची में सोलर पैनल्स का एक फ्रॉड केस आया। मैंने कहा कि सोलर पैनल्स की नीलामी नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब करें। लैपटॉप देना तलबा पर एहसान नहीं, उनकी मेहनत का एतराफ है। दानिश स्कूल पर तनकीद हुई। हजारों बच्चे दानिश स्कूल से फारिग तहसील होकर अमली जिंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। अपने सियासी सफर में कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुफ्त सोलर पैनल तकसीम किए। तलबा को लैपटॉप दिए। खित्ते में मुफ्त सोलर तकसीम का इफ्तिताह किया। मार्ग हक में श्रीनगर से बठिंडा तक पाक फिजाइयों ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फिजाई ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। कौमी दिफा में पाक फिजाई का किरदार तारीखी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्ग हक के 1 साल मुकम्मल होने पर है एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्ग हक में दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फिजाई के निशाने पर थी। बुनियादुन मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने फिजाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चढ़ाई। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात उड़ा दी। साइबर शाहिरों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। भारतीय फिजाई को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जारियत की। पाक फिजाई ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया।
PTI के जलसों और अडयाला जेल से बाहर आने का कोई प्रेशर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के करीब तरीन लोग उकता गए, वो कहीं अडयाला के बाहर और जलसे जुलूसों में नजर नहीं आते। PTI के एक लीडर को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से तकरीब में बुलाया, वो तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर नहीं आए। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी से अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। इसके बाद हालात बेहतर, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, महंगाई की लहर भी वापस होनी शुरू हो जाएगी। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज, ईवान की कार्रवाई से वॉकआउट करके PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बुशरा बीबी को अचानक अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो गुज़िश्ता चंद महीनों से कैद तन्हाई में है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन सेहत और जिंदगी को खतरे में डालना हमें कबूल नहीं। इनके साथी मुआलिज को अडयाला जेल में उन तक रसाई दी जाए। एक सेनेटर्स का वफ्द अडयाला जेल भेजा जाए जो वहां जाकर उनको दी जाने वाली सहूलियात का जायजा ले। अगर ये मुतालबात न माने गए तो हम ये इजलास चलने नहीं देंगे। राना सलाउल्लाह ने जवाब दिया, मैं कहा बुशरा बीबी और बानी PTI जुडिशल कस्टडी में है। इलाज, मुआलजे समेत इन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर है। शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू किया जाए। बुशरा बीबी की जेल में लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। सलमान सब्दा ने बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट जेल में मुलाकात के बाद अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की। बुशरा बीबी का इलाज जेल हुकाम की जिम्मेदारी है, जो कि बेहतर अंदाज में किया जा रहा है। अवाम को तंग करने और पीरा फोर्स का नाम बदनाम करने वाले एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब का पीरा फोर्स के 4000 एहलकारों और अफसरान की स्क्रूटनी का हुक्म। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस एहलकारों को जेल भेजने का इंतबाह। पीरा एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने के लिए 30 जून तक की डेडलाइन। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास पीरा का नाम बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। इजलास में पीरा से कार्रवाइयों से मुतल्लिक और दीगर ऑपरेशनल ब्रीफिंग दी गई। पीरा फील्ड फॉर्मेशन की कुल नफरी 8000 है, जिसमें से 4711 नशिस्तें पुर हो चुकी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।